Now see, we are working for the what is the opposite of cos. What is the opposite of cos? So sec 0. Sec 0 it is equal to what? Here base upon hypotenuse. So hypotenuse upon base, that will be the opposite. What is the hypotenuse? AC. What is the base? AB. Right now see, AC and AB both are equal to each other. So again AC upon AC, meaning is that this will give me the value 1. राइट नाउ वेरिफिकेशन वेरीफाई भी कर लेते हैं. cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1. 1 को क्या लिखा जा सकता है? 1 अपॉन 1. तो इसका अपोजिट भी क्या होने वाला है? 1. सेम लाइक दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 0? 0. इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? इसका अपोजिट हो जाएगा इंफिनिटी. क्यों? क्योंकि 0 को आप लिख सकते हो 0 अपॉन 1, तो इसका अपोजिट आपको दे देगा 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 मीन्स 0 इन द डिनोमिनेटर. इट विल गिव यू द वैल्यू इंफिनिटी. राइट नाउ सी फॉर द नेक्स्ट लास्ट cot. Cot 0, cot is the opposite of tan, so I have to write down base upon perpendicular. What is the base here? Base is the AB. What is the perpendicular here? Perpendicular is the BC, and you can see this BC, this is going to be 0. This BC, this is going to be 0. Again I am finding 0 at the denominator, so its value is again infinity. This is the time of verification. cot की वैल्यू tan की उल्टी होती है ना, अपोजिट. व्हाट इज द tan 0? 0. अभी मैंने आपको बताया था 0 का अपोजिट वैल्यू क्या होगा? इंफिनिटी. यू कैन सी. So only you have to remember 3 values. Only you have to remember 3 values. Sin 0 0. So what is the cosec 0? Infinity. Again second value you have to remember cos 0 equal to 1. Cos 0 equal to 1. So what is the opposite value of the sec? Again 1. After that third value you have to remember tan 0. Tan 0 equal to 0. So what is the opposite value of cot 0? Cot 0 means opposite of 0. Opposite of 0 means infinity. So you have to remember only 3 things: sin 0 0, cos 0 1, tan 0 0. Right now we have to find out the trigonometric ratios for this. You can see again by skipping my videos. I am going to find out the trigonometric ratios for the angle. For example 30 and 60 both. 30 and 60, otherwise for the 90 we can find out first, no problem. I'm not only see here, all the other things are will be same, only the values are going to be changed. See here how. What is the situation here? Let me explain you with the help of the diagram. For example, this is the right angle triangle. Let me see. For example, this is the right angle triangle. A, B, C. Initially it is a right angle triangle A, B, C, right angle at B. And after that what we have to do? This is the angle theta. This is the angle theta. अब क्या करना है? Actually इस थीटा को अपने को इंक्रीज करके किस पे ले जाना है? 90 डिग्री पे करना है. थीटा वी हैव टू इंक्रीज, और इसको अपने को 90 डिग्री करना है, मतलब ऐसा स्ट्रेट करना है. तो जैसे ही आप थीटा की वैल्यू को अपन इंक्रीज, फॉर एग्जांपल एक दूसरी पोजीशन के बारे में बात करते हैं. मान लो ये थीटा इस बार यहां पे है, तो उस केस में आप देखेंगे कि बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी द लेंथ ऑफ ए बी इट इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड. व्हाट आई मीन टू से, पहले थीटा की वैल्यू छोटी है, स्मॉल वैल्यू है, तो फॉर द स्मॉलर वैल्यूज ऑफ द थीटा यू कैन सी, फॉर द स्मॉलर वैल्यू ऑफ द एंगल थीटा दिस बी इज हियर, एंड वेन एवर आई एम इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, वैसे वैसे बी क्या हो रहा है? इट इज कमिंग क्लोजर टू द ए. इट इज कमिंग क्लोजर टू द ए मीन्स जैसे जैसे ये थीटा 90 की तरफ इंक्रीज हो रहा है, टेंड्स हो रहा है, टेंडिंग टू मूव है, जब ये थीटा 90 की तरफ इंक्रीज हो रहा है तो बी और ज्यादा करीब आते जा रहा है एज कंपेयर टू द ए. एक स्थिति ऐसी आएगी जब अपन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कंसीडर कर रहे होंगे, वहां पे बी और ए दोनों कोइंसाइड करेंगे. बी पॉइंट विल बी एग्जैक्टली ऑन द ए पॉइंट, और उस पर्टिकुलर केस पे अपन बोल पाएंगे, उस पर्टिकुलर केस में ये हाइपोटेनस जो है ना एसी, ये इस बार किसके इक्वल हो जाने वाला है? परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाने वाला है. एसी और ए बी, सॉरी ये एसी and that particular thing and this particular, look here, what is the case for the theta equal to 90 degree? For the theta equal to 90 degree, B coincide with A. B और A पॉइंट दोनों कोइंसाइड करने वाले हैं, और अगर B और A पॉइंट कोइंसाइड करने वाले हैं, मीनिंग इज दैट हाइपोटेनस AC it is equal to
hypotenuse AC that is equal to actually B and coincide. If the B coincide with A, so B को आप A भी लिख सकते हैं, तो AC is equal to BC. AC is equal to BC. That AC and BC, these are going to be equal with each other. Again, look here, one more time. What I have told you, कि whenever the theta will be equal to 90 degree, okay, in that particular case, B and A, both the point will be same, because B point, it will coincide with A. So what is the case? B coincide with A, so you can see that AC, it could be written as BC, क्योंकि A की जगह पे आप B को put up कर सकते हो, तो AC equal to BC when the theta is equal to 90 degree. और जीरो क्या होगा? जीरो होगा आपका ये बेस. जीरो कौन सा हो जाएगा बेटा? ए बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये बेस जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, जिससे थीटा अटैच्ड है, ये बेस रहेगा ही नहीं, क्योंकि सेम थिंग आई हैव टोल्ड यू कि ये बी धीरे धीरे डिक्रीज होता हुआ ए तक पहुंच गया. तो ये ए और बी दोनों जब कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों जब एक ही पॉइंट पे हैं, तो ए बी कोई लेंथ हो सकती है क्या? नहीं. तो ये ए बी हो जाएगा जीरो, मीन्स बेस अपना हो जाने वाला है जीरो, और अपना एसी और बीसी मतलब हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर है ना, हाइपोटेनस और अपना ये जो परपेंडिकुलर है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. राइट नाउ सी द सिचुएशन. इसी पे बात करते हैं. जितने भी एंगल है इसको मैं 90 डिग्री से रिप्लेस कर देता हूं. साइन 90, कॉस 90, टेन 90. ओके, इधर भी अपन देखते हैं, इसको 90 से रिप्लेस कर देते हैं. नथिंग एल्स, कोसेक 90, सेक 90, कॉट 90. राइट नाउ सी द थिंग्स. कोई भी चीज चेंज नहीं होने वाली है. साइन 90 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. What is the perpendicular BC upon what is the hypotenuse AC? अब आप ये बात देखो, बस ये कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा. BC अपॉन AC, और अपने को मालूम है BC और AC दोनों इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा बेटा AC अपॉन AC, क्योंकि दोनों ही बराबर है. कटने के बाद ये आपको वैल्यू दे देगा 1. पहले साइन 0 की वैल्यू 0 थी, लेकिन साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1. दैट यू हैव टू रिमेंबर. साइन 90 इक्वल टू 1. ओनली दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन. एक्चुअली ओवरऑल समरी के हिसाब से अपने को वैल्यूज बस याद रखनी है. स्टिल आई एम डीलिंग यू की वैल्यूज आई कैसी है, किस तरीके से वैल्यूज निकली हुई है, डेरिवेशन बता रहे हैं अपन आपको. अब देखो cos 90 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, एवरीथिंग इज ओके. AB अपॉन AC, दिस इज द बेस. यस, AB अपॉन AC. अब मैंने आपको क्या बोला कि इसमें बेस जीरो हो जाएगा, AB जीरो हो जाएगा, तो ये AB की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगा जीरो, और जैसे ही मैं जीरो पुट करूंगा तो जीरो न्यूमरेटर में होने की वजह से इसकी वैल्यू होती है जीरो. अपने को याद रखना है cos 90 होता है जीरो, cos 90 होता है जीरो, sin 90 होता है 1. ओके, राइट नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स द tan 90. tan 90 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ओके, परपेंडिकुलर BC अपॉन, यू कैन सी परपेंडिकुलर BC है, हाँ, अपॉन बेस AB है. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये BC तो ठीक है, BC को आप BC रहने दो, लेकिन ये AB जीरो हो रहा है. AB क्या हो रहा है बेटा? जीरो, यू कैन सी. और जैसे डिनोमिनेटर में जीरो आया, डिनोमिनेटर में जीरो आते ही आपको पता चलनी चाहिए इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? इनफाइनाइट. तो आपको तीन चीजें याद रखनी है. साइन 90 इक्वल टू 1, cos 90 इक्वल टू 0 एंड tan 90 इक्वल टू इनफाइनाइट. इसकी अपोजिट वैल्यू उधर आ जाएगी. देखो आप, कोसेक 90 हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, AC अपॉन BC, ऑल द थिंग्स आर सेम. अब यहाँ पे अपने को देखना है कि AC और BC दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये AC अपॉन AC हो जाएगा. कट कैंसिल होने के बाद देगा वैल्यू 1. वेरीफाई करते हैं कि साइन 90 की वैल्यू कितनी है बेटिया? 1. तो इसका अपोजिट भी कितना होगा? 1 का अपोजिट कितना होगा? 1 ही होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी 1 ही होता है. तो 1 अपॉन 1 की अपोजिट कितनी होगी? वैल्यू 1. सेम थिंग इज हियर. राइट नाउ सी, cos 90 0. अब जीरो है तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए. राइट नाउ यू कैन चेक. हाइपोटेनस अपॉन बेस, AC अपॉन AB. राइट नाउ यू कैन सी AC अपॉन AB. अपन ने भी बात करी है, AB जीरो हो चुका है, बेस जीरो हो चुका है, क्योंकि B और A पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं. तो AB की वैल्यू जैसे ही मैं जीरो रखूंगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट. सेम थिंग आई हैव टोल्ड यू कि जीरो का उल्टा होता है इनफाइनाइट. अपन ने तीन वैल्यू याद रखी है, साइन 90 1, cos 90 0, tan 90 इनफाइनाइट. ये तीनों की वैल्यू अपन अपोजिट कर लेंगे. राइट नाउ सी cot 90 सेम थिंग, ऑल द थिंग्स आर सेम. बेस अपॉन परपेंडिकुलर, AB अपॉन AC, बट हियर AB that is going to be 0 and that BC you write down either BC or AC, no problem. So because of this particular 0 it will give you 0. वेरीफाई करते हैं. tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट का अपोजिट क्या होता है? इनफाइनाइट का अपोजिट होता है 0, क्योंकि इनफाइनाइट आता कैसे है? 1 अपॉन 0 को अपन इन्फिनिटी बोलते हैं, इसका अपोजिट हो जाएगा 0 अपॉन 1. सेम थिंग, 0 अपॉन 1 मीन्स 0 इज ऑन द न्यूमरेटर, सो वैल्यू विल बी 0. सो ओनली यू हैव टू रिमेंबर दिस थ्री वैल्यू. Right now, according to the summary, again I am giving you the summary. Sin 0 0, cos 0 1,
tan 0 0. Other three values you can find out. For the 90, sin 90 1, cos 90 0, and tan 90 infinity. Tan 90 infinity. You can see. And if you are remembering this value you can find out when you will solve the question. Right now see, trigonometric ratio for the angle 30 and 60 both. For the angle 30 and 60 both. See here. Right now for the 30 and 60 both, look here, okay. Again come to the, see, with the one diagram I can solve all these things. Other things I am not going to rub down. See here what the things are going to be changed. For that particular thing we have to construct one equilateral triangle. What we have to construct? We have to construct one equilateral triangle. So see here, this is the equilateral triangle, A, B and C. This is the equilateral triangle. I am going to write down here, triangle ABC is equilateral. If it is a equilateral triangle, meaning is that all the sides are equal, and I am supposing that all the sides are equal, and I am taking it 2a, 2a and 2a. All the values of three sides is equal to 2a. Right now see, what we have to do, we have to draw one perpendicular. We have to draw this perpendicular AD. We have to draw this perpendicular AD on BC. Same thing I have to write down here. जो भी एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं यहाँ पे लिखते हैं, AD परपेंडिकुलर टू BC, ये अपन ने ड्रॉ कर लिया है. अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंड व्हेन यू आर ड्राइंग द परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी ऑफ द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड, तो ये थ्योरम अपने को मालूम है कि जब भी किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एंड इफ इट इज द केस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो वो अपोजिट साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है मींस दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. तो ये भी ए हो जाएगा और ये हो जाएगा ए, मींस ये बीडी जो है एक फ्रैक्शन हो जाएगा ए, और ये डीसी भी हो जाएगा ए. अच्छा, यहां पे मैं 90 डिग्री साइन आई कैन मेक हियर बिकॉज इट इज अ परपेंडिकुलर, मीनिंग इज दैट एंगल डी, जैसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एंगल डी की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, दैट इज द थिंग. और ये ए हो जाएंगे, क्या BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू A, क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है. राइट नाउ सी, यहाँ पे बस पाइथागोरस थ्योरम लगा के अपने को AD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. व्हाट इज द परपेंडिकुलर, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, एंड अदर थिंग्स विल बी वेरी वेरी क्लियर टू अस. Okay, so here I am going to apply Pythagoras theorem. See here. Other things you need not to concentrate. Other things I am going to rub down. Okay, otherwise you will be confused. These values I am going to rub down. These are going to be changed right now. Other things are same values. Okay, this formula is not going to be changed. Right now see, by applying the Pythagoras theorem in the right angle triangle ABD. Triangle ABD. This is the right angle triangle, and what I am going to apply? I am applying Pythagoras theorem, so I am writing down here Pythagoras theorem. By applying the Pythagoras theorem, you can see here hypotenuse square means AB square. AB square, it should be equal to the AD square plus BD square. You can see AB square. AB is the, what we have to find out actually, we have to find out the value of AD. We have to find out the value of AD. So here we can say that AD square is equal to AB square minus BD square. AD square की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो BD square को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो AB square minus BD square. Okay. Right now see, what is the value of AB square? 2A whole square. So 2A whole square. What is the value of BD square? A square. No problem. Say just I am putting the values. 2A square will give me 4A square. 2A square will give me 4A square, and here minus A square. It is 4A square minus A square will give me 3A square. 4A square minus, here also AD square. No need to write down. AD square is equal to 3A square. From here you can see what is the value of AD. The value of AD, it is equal to root 3A. Look here. What is the value of AD? If AD square is equal to 3A square, तो स्क्वायर रूट आ जाएगा. स्क्वायर रूट आने की वजह से A तो बाहर निकल जाएगा.
क्योंकि a स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर रूट विल कम ऑन द रूट 3, सो द वैल्यू ऑफ AD इक्वल टू रूट 3a. ओके